Shlok Pandey and I study in class 8. My school name is Tajma School, Khaparkheda. Science topic: coal and petroleum. Renewable resources. Renewable resources are those natural resources that are present in unlimited quantity in nature. They can renew themselves if they are used sustainable. These resources are not likely to be extracted or depleted by human activities. As they are unlimited, they are also called inexhaustible resources. For example, air, water, sunlight, etc. Non-renewable resources. Non-renewable resources are those natural resources that are limited in nature and cannot be renewed or regenerated as fast as they are consumed and used up. They can adopted by human activity. Since they are limited, they are also called extractable resources. For example, coal and petroleum, forest minerals, etc. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं नेचर में और वो बार बार अपने आप को बना सकते हैं और ह्यूमन उसको डिप्लेटेड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर और सनलाइट। नॉन रिन्यूएबल वो रहते हैं जो कि नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है और वो इंसान उन्हें फास्ट क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट मिनरल्स। थैंक यू। Good morning all of you. My name is Mundane Rajesh Kundare. I am 7th class student from Plasma School, Khaparkheda. Subject Science. What is the function of stomata? Gaseous exchange. In which form do plants usually store food? Starch. The green pigment found in leaves of a plant is? Chlorophyll. My name is Samyak Bandu Lokhande from class 10, subject Civics. Lesson number the Indian Parliament, topic Lok Sabha. The Lok Sabha is the lower and the first house of the Parliament of India. Lok Sabha is the House of Representatives directly elected by the people. Hence the Lok Sabha is called first house. The members of Lok Sabha are elected directly by people from the territorial constituents. The tenure of Lok Sabha is 5 years. The election takes place after 5 years. These elections are known as general election. However, there are examples when the Lok Sabha was dissolved before the completion of 5 years. Election held in such a case called midterm election. जो लोकसभा रहती है वो उसे फर्स्ट हाउस और लोअर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का। लोकसभा के पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड बाय होते हैं, जिन्हें हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए लोकसभा को फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो 5 इयर्स होता है, इसलिए हर इलेक्शन 5 साल के बाद होते हैं, जिसे हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। लोकसभा डिसॉल्व होता है कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स और इलेक्शन अगर किसी बीच केस में रुक जाते हैं तो उसे हम मिड टर्म इलेक्शन के नाम से जाने जाते हैं और लोकसभा में मिनिमम मेंबर 552 मेंबर्स इलेक्टेड हो सकते हैं। My name is Hazan Qurashi. I am studying in class 7, subject History. MCQ. Founded the Samart Sampradaya? Ramdas Swami, Sant Eknath. Ramdas Swami. A great famine occurred in Dash in 1630 century. Assam, Maharashtra. Maharashtra. Pune Pargana consists of Dash village. 40, 290, 290. My name is Sarangi Gelurkar. I study in class 8, subject Marathi. कवितेचे नाव आहे कुठे शोधेशी रामेश्वर. कुठे शोधेशी रामेश्वर आणि कुठे शोधेशी काशी. हृदयातून भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी. झाड फुलांनी आले भरून तू न पाहिले डोळे उघडून. वर्षाकाळी पाऊस धारा तुला न दिसला त्यात इशारा. काही तुला उपयोग आंगड्या दीप असून उशाशी. रुद्राक्षाच्या गळ्यात माळा लाविलेस तू भस्म कपाळात. कधी न घेऊन नांगर हाती पिकविलेस माती तुली मोती. हाय भाग्या भगवे नेसून घर सन्यासून जाशी. देव बोलतो बाळ मुखातून देव डोलतो उंच पिकातून. कधी होऊ नये देव भिकारी अन्नासाठी आर्त पुकारी. अवतीभोवती असून दिसेना शोधितो सा काशी. कवीचे नाव आहे मंगेश पाडगावकर. My name is Sarthak Khandekar, class 7, subject Science. Filling the blanks. The living things need dash to do work. Energy. The plants use dash and dash to manufacture their food. Sunlight and water. The gas released by green plants during photosynthesis is? Oxygen. My name is Tanmay. I study in class 8, subject Hindi. कविता का नाम फूल और कांटे. जन्म लेते जगत में एक ही पौधा, उन्हें पालता रात में
डालता। मैं उन पर बरसता एक्साइटिंग पर हवाएं हुई पर सदा यह दिखाता है कि ढंग उनके एक से होता नहीं। छेड़कर करा किसी लिया फाड़ है किसी का और वसन या डूबे तितलियों का पर कदर हो का है बेदेदा शाम तक। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनोखा रस मिला। जिस सुगंध निराले रूप से है सदा सदा कवि जी की खिला है कटकता या सबकी आखिरी दूसरा सदा सूर शीश पर किस तरह फूल की पढ़ाई काम में झूठ वो किसी में बड़प्पन की कसर। थैंक यू। My name is Prashik Shailesh Patil. I am studying in class 8 in Plasma School, Khabarkheda. Subject Geography, lesson number 1, local time and standard time. We get up early in the morning, brush our teeth and take a bath. Then we have breakfast and go to school. We study in our classrooms. We return home. We go to the playground to play in the evening. We have dinner, brush our teeth and go to sleep. We keep doing similar activities throughout the day. Considering our all daily routine, we need to decide the time for all our activities. In olden days, people used to take the help of various tools and also depends on various natural events. For the measurement of time, on the basis of observation and experience, they divide the day into the following parts. From sunrise to sunset, day time, and from the sunset to the next sunrise, night time. A whole day meant the duration from the one sunrise to the next. Earlier natural events and instruments like Ghatika Patra, a bowl with a minute hole at its base, with would float in a large water-filled vessel. हम सुबह जल्दी उठते हैं और अपने टीथ ब्रश करके नहाने जाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए तैयार होते हैं एंड स्कूल जाते हैं। फिर उसके बाद क्लासरूम में स्टडी करते हैं एंड स्कूल को छुट्टी होने के बाद वी रिटर्न होम। वी डू एंड इवनिंग के टाइम हम प्लेग्राउंड जाते हैं गेम्स खेलने के लिए। वी हैव डिनर एंड नाइट टाइम में हम डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद ब्रश करके हम अपने दांत घसते हैं एंड सोने चले जाते हैं। हम ये सारी एक्टिविटीज़ पूरे दिन में करते हैं। कंसिडरिंग आवर डेली रूटीन, ये हमारी डेली रूटीन्स है। हमें टाइम मिलता है ये सब डिसाइड करने के लिए हमारी एक्टिविटीज़। पुराने दिनों में पुराने दिनों के लोग टाइम मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगते थे। उन्हें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता था पूरे डे का एक्सपीरियंस। उन्होंने डे टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सनराइज टू सनसेट, डे टाइम एंड फ्रंट ऑफ द सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज, नाइट टाइम। ये पूरे दिन में जो ड्यूरेशन होता था सनराइज का टू द नेक्स्ट मतलब अगले दिन तक नाइट टाइम रहता था। अर्लियर नेचुरल इवेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें टाइम मेजर करने के लिए नेचुरल इवेंट्स एंड मेजरमेंट्स की ज़रूरत थी। उसमें से एक एग्जाम्पल है घटिका पात्रा। घटिका पात्रा में एक छोटे कटोरी होती है जिसके नीचे एक छोटा होल करके उसे फुल फिल्ड वाटर टैंक में रख दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, म्यूजियम एंड हिस्ट्री। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, photographs and such other things are preserved in a museum. At the Aga Khan Palace in Pune, we can see different objects, documents giving information about the life of Mahatma Gandhi. History के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई करें तो हिस्ट्री के लिए पुराने ज़माने की पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और भी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि म्यूजियम में मौजूद होते हैं। ऐसे एक म्यूजियम है आगा खान पैलेस जो कि पुणे में मौजूद है। वो हमें उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोज़ हैं, वो हमें महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। My name is Arya. My school name is Plasma School, Khabarkheda. My study is 5th standard. My subject is हिंदी. My topic पथ मेरा आलोकित कर दो। नव प्रार्थी नव रश्मि से मेरे उद्गतम बदो पथ मेरा आलोकित कर दो। मैं नसा प्रति विश्व के पथ पे जन्म सीख रहा हूँ। मैं नसा भी विश्व के नाम में उन्नत सीख रहा हूँ। कौन सा प्रकृति से तक मुझको ऐसे पर हो पड़ तो पाया जैसे जितना अब तक और अभी जितना है पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, इससे करिए दिखते जाओ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मन है और नव प्रार्थी नव रश्मि से मेरे उद्गतम बदो पथ मेरा आलोकित कर दो। My name is Gloria Lamune. My school name is Plasma School, Khabarkheda. My class 5A. Subject Marathi. Deep Politics. माझे Deep Politics. पहा मुलांची विक्रमजीत, किती सुखाची सकाळ, किती मजाची वेळ, आनंदाने झाडाखाली
महार मोरजाने यावेली खाली फुलेटी सकाळ जाईन लपून मगे दाखवून बहर आहे तोवर टिक फुलेटी पहा फुलांची पखरंजी माझी गडी ग टिक फुलेटी. My name is Zina Siddiqui, class 7, subject math. 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 8 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 10 130. My name is Ajagana. I am studying in 7th class and subject assistant. Pick the correct answer from the given option. The headquarters of the Khalsa Dal were at Nanded, Anandapur. Noor Jahan played an active role in the administration during the reign of Aurangzeb Jahangir. The Ahoms united against the Mughals under the leadership of Pratap Singh Gadadhar Sinha. Thank you. My name is Arya Gurav. Class 7. Poem name is मराठी माती. माझ्या मराठी मातीच्या लावानंतर हिच्या संगीने जागले दरा कुडतिष्ठ हिच्या कुशीत जन्मले काळी कमला ज्याच्या दुर्दैवाने केली मृत्यूवरी मात नाही पसरला कोण कधी मागे येणार सर्व सिंहासनापुढे कधी लावली न मान हिच्या गंगात गुण अभ्यासानंतर वाही हिच्या पुत्राच्या आहे संताची गवाही माझ्या मराठी मातीच्या लावानंतर तिला हिच्या संगीने जागले माया देशात